Students, in the previous video you have seen how to solve a homogeneous partial differential equation having variable coefficient. You have seen that first change the variable coefficient into constant coefficient, then after applying the various method to find pi, CF as well as pi and combine these CF and pi together with, you will get the solution of the given partial differential equation. One more cases, इस केस की चर्चा मैंने नहीं किया था. Special case when right hand side, that is f of xy is a function of e to the power ax plus by into phi of ax plus by. अगर इस तरह के प्रोडक्ट फंक्शन दिए गए हों तो पी आई कैसे निकालते हैं. एक क्वेश्चन, ये लास्ट कंटेंट इस मॉड्यूल का है. इस पे क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, बताया भी नहीं था. ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. प्रीवियस बीटेक फर्स्ट ईयर में आप इससे परिचित हैं कि हम इस तरह के फंक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो और एक्स के भी फंक्शन हो, इट मे बी साइन कॉस टेन कॉट एनीथिंग, उस केस में आप क्या करेंगे. इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप ऐसा पढ़ते आए हैं. प्रीवियस क्लास में ऐसा पढ़े होंगे कि जब कभी भी इस तरह का फंक्शन दिया गया हो, मीन्स वहां आपने ये पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर ax फाई ऑफ x. तो आप किया क्या करते थे, e टू द पावर ax को यहाँ लिखते थे इंटू 1 अपॉन डी रिप्लेस्ड बाई डी प्लस ए करते थे और फाई x. ये हो जाने के बाद अब ये प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाया करता था, अगर आपको याद है तो. बिल्कुल सेम तरह से, सेम वे में हम इस कंटेंट को बताएंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बताएंगे, जो कि इस प्रकार है. बिल्कुल एज द सेम प्रोसेस हम यहाँ भी वही करते हैं. e टू द पावर ax प्लस by को पहले लिख लेते हैं, b को d प्लस a से रिप्लेस कर देते हैं, d डैश को d डैश प्लस b से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी के सूचनाएं, बाकी के रूल्स वही हैं. इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस पे जो भी यहाँ फंक्शन दिया गया होता है, साइन कॉस टेन कॉट, जो कुछ भी दिया गया होगा, here it may be the function of this, it may be the trigonometrical function, it may be the product of 2xy and so on. जो कुछ भी आपको दिया जाएगा उसे आप करेंगे. So now this is the pi, this is the pi. So today's topic is based upon this, today's problem is based upon this particular integral. So I am going to explain this by giving an example. Solve this. Solve d square plus dd dash minus 6d dash square z is equal to x square sin ax x plus y. This is the problem. x square into sin x plus y. देखने में प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टेढ़ा है. हम इस प्रॉब्लम में इस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जनरल के स्पेशल केस को फॉलो करेंगे. So
Student, let us see. As you know, the given equation solution will like this. This is the example. Solution will be like this. Given that d square plus dd dash z equal to x square sine x plus 1. This is the first question. This is the first problem. First equation. So now the complete solution of equation 1b Cs is equal to Cf plus Pi. This is second. This is the second equation. Now to find Cf, put d square plus dd dash minus 6d dash square z equal to 0. Let us take this equal to 0. To find Cf, let left hand side with 0. So now, put d equal to m, d dash equal to 1. We have m square plus m minus 6 equal to 0. So from here, m minus 2m minus 6 equal to 0. So this implies that the factor of this will be m plus 3 minus 2 m plus 3, which is equal to 0. This implies from here, this implies that m plus 3 m minus 2 is equal to 0. So from here m equal to, from here m equal to 2 comma minus 3, 2 comma minus 3. So CFB f1 y plus 2x plus f2 y minus 3x. This is the value of CF. So now this will be equation number 3rd, and I am going to find out the Pi also. So to find Pi, now to find Pi, now to find Pi, this be f of dd dash. This is a given problem, be x square into sine x plus y, x plus y. So student, as you know, f dd dash, in place of f dd dash we will put d square plus dd dash minus 6 dash square, and this be x square sin x plus y. जब कभी भी, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरह की समस्या का प्रॉब्लम आपके सामने दिखे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन या कॉस के फॉर्म में गिवन हो,
वहाँ एक लॉजिक का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल ये प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस केस में हम इस दिए गए प्रॉब्लम को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, और आपने पढ़ा भी है e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। It means that whenever sine function be given, so previous class में हमने पढ़ा होगा, उस केस में हम लिखते हैं cos function is given, so real part of e to the power ix. Cos function be denoted as cos x may be written as real part of this. Sine function, for sine function, imaginary part of e to the power ix. As the same process, since sine function is given, so we can write this pi can be written as 1 upon d square plus dd dash minus 6 into sorry for that, इसको लिख सकते हैं pi is equal to imaginary part of x square into e to the power I x plus y। आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट साइन x प्लस वाई हो। जैसा मैंने बताया, साइन x क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये रियल पार्ट है। इस एक्सटेंशन e टू द पावर आई एक्स का ये रियल पार्ट कहलाता है, और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, क्योंकि इसके साथ आई लगा हुआ, आई के साथ जो टर्म होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और ये बाकी का रियल पार्ट। So now cos x be real part of this as well as sin x be the imaginary part of this. So using this concept, by using this concept, we have written here x square particular integral is equal to imaginary part of this, imaginary part of this x square into this. So from here pi equal to imaginary part ऑफ, अभी इससे पहले मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फार्मूला बताया कि आप क्या करेंगे, d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे और d डैश को d डैश प्लस b से रिप्लेस करेंगे। सो नाउ दिस बिकम्स e टू द पावर ix प्लस iy, सो इट कैन बी d प्लस d plus I, this be d plus I whole square plus d plus I d dash plus I minus 6d dash plus I whole square, and this be x square. Okay students, so now from here imaginary part of इसे हम लाइन बाय लाइन ऐसे लिखते जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I into solve this denominator after solving it, this is a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab plus a plus b, यहाँ d plus I d dash plus I, so after multiplication d dash di plus d dash I, okay, plus I square, d into d dash d into I di, I into d this, I into I square
minus 6 times again this be d dash square plus I square plus 2d dash I x square. So by solving this, particular integral one imaginary part of e to the power I x plus y into 1 upon, सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये डी स्क्वायर, ये -1 बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर बिकम्स -1, सो -1 2di plus dt dash plus di plus d dash I, and this is again -1 because of I square -1 minus 6d dash square minus this becomes, this is a I square, it means that -1, so minus into minus plus, so this becomes plus 6, and this is 12 plus 12d dash I x square. Just see, sorry for that, minus, this becomes minus 12, this is -12. So again, imaginary part of e to the power I x plus y to 1 upon, यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 1 2 और 6 मिलकर के 4 हो जाएंगे। यहाँ और क्या मिल सकता है, d स्क्वायर मिलेगा, d स्क्वायर, यहाँ 2di और di मिलकर के 3di हो जाएगा, 3di प्लस 3di, इसे हमने ले लिया, इसे ले लिया, कंसीडर कर लिया, इसे और इसे मिलकर के लिख लिया हमने, प्लस 4 लिख लिया। सो आफ्टर दैट डी डैश यहाँ होगा और इसे लिख सकते हैं प्लस डी डैश, और क्या होगा डी डैश आई और माइनस डी डैश आई मिलकर के डी डैश आई -6 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। स्टूडेंट सी केयरफुली, आप देख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ, फिर क्या होगा, फिर आपको और इजी वे में बताया जाए तो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का वो केस पढ़ा है जहां x टू द पावर m y टू द पावर n का जब राइट हैंड साइड दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हों तो आपने केस पढ़ा है। उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप या m और n में देखते हैं m बड़ा होगा n बड़ा होगा, या अगर कुछ नहीं बड़ा होगा, अगर सिंपल एक वेरिएबल का फंक्शन है तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल टाइप का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उस केस में आप डिनोमिनेटर को 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में बनाते हैं और क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करते हैं और फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन के थ्रू उसका एक्सपेंशन करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, D स्टैंड फॉर डेल बाई डेल एक्स, D डैश स्टैंड फॉर डेल बाई डेल वाई। इसका मतलब ये हुआ डी डी डैश, अगर एक्स स्क्वायर डी डी डैश पर ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, डी डैश पे ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, डी डैश स्क्वायर पे ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी।
मतलब यहां से इन तीनों टर्म से अगर एक्स स्क्वायर ऑपरेट होगा तीनों टर्म पे तो जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो 0 होगा। इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। So now from here particular integral is equal to one of imaginary part of e to the power I x plus y into 1 upon t square plus 3 di plus 4 plus 4 x square। ये आपने देखा डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी आई, क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया, लीव कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एक्स स्क्वायर को इस पे ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा। So now from here the particular integral b, this is very complicated problem, imaginary part of e to the power I x plus y। अब इसे हम यहाँ से 1/4 टेकिंग कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस 3di अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ बनेगा। इस तरह का एक फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर। इसमें हम डिनोमिनेटर हमने 4 कॉमन ले लिया। क्यों किया? क्योंकि हमें 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में डिनोमिनेटर को चेंज करना था, और उसके बाद हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power I x plus y बाई 4, इसे हम लिख सकते हैं अपॉन 4, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3di अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पे पावर -1। इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट का यूज करके इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर आप देखें और आपको याद हो तो ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। इस इधर भी मैंने बताया रिसेंट के वीडियोज में कुछ दिन पहले, क्या करेंगे आप, इसके बाद का जो स्टेप्स है उसमें आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power I x plus 4 x plus y सॉरी अपॉन 4 और इसे लिख सकते हैं क्या, a 1 plus x to the power -1 मीन्स 1 plus x स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 1 plus 3di अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सॉरी 1 माइनस लिखेंगे यहाँ, क्योंकि माइनस है, 1 माइनस समथिंग होगा, यहाँ माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। और 1 माइनस आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फार्मूला आगे चलता जाता है। यहाँ से अगर आप देखें, इसे आप लिख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से 3di अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन अपॉन 2 डैश 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 एक्स स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने के दौरान जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ particular integral is equal to imaginary part of e to the power I x plus y अपॉन 4, और इसे आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो मैंने बता रखा है कि डी को हम डिफरेंशिएशन की तरह यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी डैश को विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो नाउ हियर 3di/4। सो एक्स स्क्वायर जब ऑपरेट होगा इस पे ये हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन इसका 2x मीन 3 इंटू 2x इंटू i/4 होगा। 2x क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। और आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी 2x, सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी 2, सो नाउ दिस बिकम्स 2/4। और आगे बढ़े यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जब यूज करेंगे, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये डी स्क्वायर होगा और यहाँ d टू द पावर 4 हो जाएगा। आपको सभी को पता है कि जब पावर जैसे ही एक्सीड करेगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जब आप पावर यहाँ एक्सीड करेगा मतलब ये हो जाएगा 9d² i² 16 प्लस d टू द पावर 4/16 ऐसा होगा। और आगे जाकर के प्लस 2 टाइम्स होगा, यहाँ 1/2 पहले कॉमन ले लें, आगे जाकर के ये प्लस 2 3 जा 6 d² di/16 होगा। इस तरह की चीजें आएंगी आगे और एक्स स्क्वायर होगा, इनका एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ ये ब्रैकेट लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जब पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू imaginary part of e to the power I x plus y/4। यहाँ क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखें ये हो जाएगा 2 टू द 4 मीन्स माइनस 3xi/2 और आप ध्यान से देखें यहाँ हो जाएगा 2 1/2 और आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे ये मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव 2 होगा तो 2 8 जा मीन्स प्लस इंटू ये हो जाएगा 9/8 और ये i² मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस 9/8 आएगा यहाँ से आंसर। और इससे ये रिजल्ट 0 दे देगा और इससे भी ये 0 देगा क्योंकि यहाँ d क्यूब हो जाएगा, d² इंटू d क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस 0। सो नाउ फ्रॉम हियर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I x प्लस y/4 लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ये x² होगा, ये माइनस 3xi/2 होगा और इसको सिंप्लीफाई करने के दौरान आप ये पाएंगे माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस 9/16। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा pi इक्वल टू imaginary part of e to the power I x plus y/4 और यहाँ आप देखें तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये लगेगा कि 2 8 जा 16 में 16 एलसीएम होगा, 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 9 8 17 होगा मीन्स x² माइनस 17y/16 एक ब्रैकेट में होगा प्लस माइनस i इंटू 3x/2 दूसरे ब्रैकेट में होगा। तो ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। फिर क्या करेंगे आप, इसके बाद आप एक 2 स्टेप का और है, आप देखेंगे अब आप इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I x 1/4, इसे लिखेंगे cos x प्लस y, एक्सपेंशन लिखेंगे इसका
प्लस आई साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 17/16 माइनस आई 3x/2। तो आपको मिलेगा क्या? आप ऐसा पाएंगे इमेजिनरी पार्ट कहाँ से है, जब रियल का मल्टीप्लिकेशन जब इमेजिनरी में होगा और इमेजिनरी का जब मल्टीप्लिकेशन रियल में होगा तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पहले हम मल्टीप्लाई कर लें 1/4 और जब कास का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो रियल होगा, जिसको छोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17/16 साइन एक्स प्लस वाई, और फिर आएगा माइनस आई 3x/2 कॉस एक्स प्लस वाई। आप देख सकते हैं जब आप रियल पार्ट का मल्टीप्लाई रियल पार्ट में करेंगे तो रियल टर्म आएगा, रियल का मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी में करेंगे तो ये मिलेगा, और इमेजिनरी का इमेजिनरी रियल में करेंगे तो ये मिलेगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी से करेंगे तो रियल मिलेगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो पी आई होगा वो इस तरह का होगा एक्स स्क्वायर माइनस 17/16 साइन एक्स प्लस वाई माइनस 3x/2 कॉस एक्स प्लस वाई। ये होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट। सो नाउ दिस बी फोर्थ इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन होगा, और आपने को लिखा जा चुका है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस P ऑफ I होगा। नाउ इक्वेशन 2 becomes now equation 2 becomes CS is equal to CF F1 y plus 2x plus F2 y minus 3x, यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस 1/4, और यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई माइनस 3x/2 cos x प्लस वाई। बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज required solution of equation 1। इस तरह से हमने ये पाया कि अगर राइट हैंड साइड दो प्रोडक्ट मीन्स एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस तरह के फंक्शंस दिए गए हैं, तो आप बहुत आसानी से इस मेथड का यूज, इस लॉजिक का यूज करके आप बहुत आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आज यहीं तक जो मॉड्यूल 1 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस में आपको मॉड्यूल 2 के बारे में बताया जाएगा। आगे आप इसको करते रहें। इस तरह के प्रॉब्लम एक लेक्चर में, एक वीडियो लेक्चर में एक ही बताया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसको आप आसानी से समझ के खुद करेंगे तो आए। बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो डू द प्रैक्टिस एंड you become a perfect student. Okay, thank you.